میں گزارش کروں گا بہن صدف سے پلیز آئیں اور آ کے خدا کا کلام ہمارے ساتھ پڑھیں. لوک چیپٹر 6 27 to 38 اینڈ دین لوک 9. تھینک یو. آج کی پہلی تلاوت لوکا نبی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 27 آیت سے 38 آیت تک. لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. جو تم سے عداوت رکھے ان کو بھلاؤ، جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو. جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو. جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو. جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوغا لے اس کو کرتا بھی لینے دے. جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر. اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کیا کرو. اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کرے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے. گناہگار بھی گناہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کرے. مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا، اور تم خداوند تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو. عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی. مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرو گے. خلاصی دو تو تم بھی خلاصی پاؤ گے. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. آج کی دوسری تلاوت لوکا نبی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 51 آیت سے 62 آیت تک. جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے. وہ جا کر سامریوں کے آگے گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں. لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا، کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا. یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کہ انہیں بھسم کر دے، جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسے روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم کو جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے. پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے، اور جب راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں. پھر اس نے دوسرے سے کہا کہ میرے پیچھے چل. اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے اپنے باپ کو جا کر دفن کروں. اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. اور ایک اور نے کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو جاؤں. یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. آمین. تھینک یو صدف خدا کے کلام پڑھنے کے لیے. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور ہم سب کو بھی برکت دے کہ ہم اس کلام کو اپنے کانوں سے سن پائے. بہت دیر ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ اس دن میں شامل ہو سکے، مگر خدا کی محبت
उनके साथ क्या कह सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा थी जो वो यहाँ से ले लिए गए, और जो नहीं थी तो वो भी यहाँ से ले लिए गए। एक ना एक दिन हम सब खुदा के सामने खड़े होंगे, चाहे इस ज़मीन पर उसको माने या इस ज़मीन पर उसको ना माने, खुदा के सामने हम सब खड़े होंगे। चाहे उसके बाद के हमारी मंजिल कहाँ हो हम नहीं जानते, मगर खुदा के सामने एक दिन हम सब खड़े होंगे। ध्यान रखिए, खुदा ने कलाम क्या ही सच्चा है, तंदुरुस्त है, हमेशा हमारे को वार पार करके छेदता है, और कलाम कभी भी ऐसा नहीं करता कि हमारे साथ नाइंसाफी करे। हमेशा हमें सच की राह बताता है, रूह की राह बताता है, चाहे वो जमाने से, चाहे हमारी दुनियावी तौर तरीकों से, चाहे हमारी खुद की ख्वाहिशों से, चाहे हमारे खुद के ड्रीम्स से, चाहे हमारे खुद के अल्फाजों से, हमारे कामों से कितना ही दूर हो, खुदावंद हमें कभी भी गलत राह पर भटकाने के लिए हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हमारे साथ ऐसा नहीं करता कि अच्छा अगर तू मेरे पीछे पूरा नहीं हो सकता तो क्या थोड़ा सा भी होना नहीं चाहता। अनफॉर्चुनेटली हम इस बात को नहीं समझ पाते कि जब हम खुदा में हैं तो हम पूरी तरीके से खुदा में हैं, और अगर हम शैतान में हैं, दुनिया में हैं, तो हम पूरी तरीके से दुनिया में हैं। हम दो नाव पे पैर रखकर अपनी जिंदगी को नहीं चला सकते, नहीं जी सकते, क्योंकि ये बात लाजमी है और जाहिर है कि जो उस आदमी ने अपने कदमों को दो नाव में रखने की कोशिश करी, वो डूबा ही है। There is no gray area. I always say this to you. कोई ग्रे एरिया नहीं है। आइदर आप खुदा के खेमे में हैं, आइदर आप उसके राइट हैंड के ऊपर खड़े हैं जहां पर उसकी भेड़ें खड़ी हैं, और आप शैतान के खेमे में खड़े हैं जहां पर बकरियां हैं। और मैंने आपको बहुत बार बोला है, खुदा स्पीशीज चेंज नहीं करता। वो हमारे पत्थर के दिल को निकाल कर उसे मोहब्बत भरकर उसे मांस और लहू का बना देता है, और तब हम उस खुदा के खेमे में शामिल हो जाते हैं। मगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें कलाम को फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास पाबंदियां हैं, उसके लिए हमारे पास तौर तरीके हैं, उसके लिए हमें अपने आप को, अपने देखने के तरीके को, अपने बिहेवियर को, अपनी मंजिलों को, अपनी सक्सेस को, अपने बच्चों को, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। और जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करते और अपने आप ही से, अपने गुनाहों से, अपनी उस दुनिया से इनकार नहीं कर देते, तब तक हम खुदा की राह पर नहीं चल सकते। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली खुदा आपको अपने कलाम से कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहेगा। वो आपको सटीकता के साथ उस रास्ते पर लेकर चलेगा जहां पर आपके लिए विपदा, आपके लिए मुश्किलें, आपके लिए परेशानी इस जमीन पर, इस काल में, इस वक्त में जरूर होंगी, मगर वो आपको ऐसा लालच देकर कि मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा, चल मेरे साथ, मैं तुझे बड़ी गाड़ियां दूंगा, चल मेरे साथ, मैं तुझे बहुत सी बरकतें दे दूंगा, चल मेरे साथ। यीशु मसीह के सामने वो 300 से भी ज्यादा चेले खड़े थे होंगे, सिर्फ 12 चेले नहीं थे, बहुत सारे थे। और जब यीशु मसीह का कलाम दोधारी तलवार की तरह उनके दिलों पर पड़ा, वो सब भाग गए, सब भाग गए। बहुत सारे लोग जो उसका फॉलोअर कहते थे, वो सब के सब भाग गए और बाड़ा खड़े रह गए। और खुदा यीशु मसीह ने बोला, तुम भी जाना चाहते हो क्या? उसने बोला, खुदा किसके पास जाएंगे? तेरे पास इटर्नल लाइफ है। You have the key of life and success. Where will we go? और ये बात वो 300 नहीं समझ पाए, मगर ये अनपढ़, ये बेवकूफ, ये मछुआरे, ये टैक्स कलेक्टर्स समझ गए कि खुदावंद यीशु मसीह के पास ही राह, हक और जिंदगी है। राह, हक और जिंदगी है। कल मैं गुरुद्वारे में प्रीच कर रहा था। भाई दीपक की वजह से मुझे मौका मिला कि बाहरी अंकल जिनकी मिसेस की डेथ हो गई थी, उन्होंने हमें गुरुद्वारे में बुलाया, उन्होंने प्रीस्ट को भी बुलाया, मुसलमान साहब को भी बुलाया और हमें बुलाया। एंड आई प्रीच देयर एंड आई प्रीच व्हाट आई नीड टू प्रीच। एज यू कैन सी, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब हम मर जाते हैं उसके बाद हमारा क्या होता है।
कम से कम 3 या 4 लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला, सर जो आपने प्रीच किया उसने हमारे को एक उम्मीद दी कि हमारी माँ, हमारी भाभी, हमारी बहन खुदा के वसीले एक ऐसी जगह पर है जहां पर उसे एक बेटर बॉडी दी गई है, जहां पर उसे एक बेटर इनहेरिटेंस दी गई है, जहां पर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं है। थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट। ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ खुदा का कलाम कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। और अगेन इस तमाम चीज को अगर मैं पर्सपेक्टिव में रखूं तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आई होप it's not going to be very difficult for you and me to understand. अभी हमने खुदावंद का कलाम पढ़ा, लूका उसका 6 बाब की 27वीं आयत से हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब सदफ ने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा, मैं दोबारा एक बार आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कहां से पढ़ा था हमने, याद करें भाई? 27वें बाब से। लेकिन मैं सुनने वालों से कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, तुमसे अदावत रखे उसका भला करो, जो तुम पर लानत करे उसके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हें तकरीर करे उसके लिए दुआ करो। अब सोचिए, ये कलाम आपके पास आपका जो पॉलिटिकल लीडर है वो लेके आ जाए। जो आपका पॉलिटिकल लीडर है अपने मैनिफेस्टो में, और जो उसका जो वोटिंग बैंक है उसको ये बड़े बड़े अक्षरों में दिखा रहा है, अपने दुश्मनों से अपने समान प्यार करो, अपने पड़ोसी समान अपने आप प्यार करो, जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसके आगे दूसरा कर दो, जो तुम्हें 1 मील जबरन लेके जाओ उसके बाद 2 मील चले जाओ, जो तुम्हारा कुर्ता जबरन ले ले उसको दूसरा कुर्ता देने से भी ना रोको। ऐसे मैनिफेस्टो उसके पास हो, आप में से कितने लोग उसको वोट देंगे? 0। वो कहेगा पागल हो गया है, पागल हो गया क्या? आई विल नेवर एवर गिव अ वोट टू अ पर्सन जो हमारे को कहता हो कि अपने दुश्मनों से अपने समान मोहब्बत रखो। मगर ये डायरेक्ट हुक्मदूली है अगर मैं और आप ये काम नहीं करते। मैं कई बार सोचता हूं कि हम इस क्रिश्चियन, हम में से जो कोई भी यहां पर आए थे वो सोच के आए थे कि ये जगह एक मसीह कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, राइट? मे बी नो मोर, बट अगेन अगर कोई पॉलिटिकल लीडर इस बात को लेकर नहीं चलता, गॉस्पेल को लेकर नहीं चलता, तो क्यों नहीं चलता? बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट, इट्स रियली टफ, एंड नो वन एवर कैन फुलफिल दिस अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। किसी ने आज तक इसको पूरा नहीं किया यीशु मसीह के अलावा, कोई इसको पूरा नहीं कर पाया। मगर जरूरी है, मगर जरूरी है। कलाम में हमने क्या पढ़ा? लूका 9 के अंदर, जो तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे, यू नीड टू बी स्लेव ऑफ लव, स्लेव ऑफ लव, दैट्स व्हाट इट सेज। क्यों? क्योंकि हमारे को आज तक मोहब्बत करनी नहीं आई, हमें मोहब्बत करनी ही नहीं आई। हमें जो दुनिया ने मोहब्बत सिखाई है, हम उस मोहब्बत पे टिके हुए हैं। जो कलाम हमें मोहब्बत सिखाता है, मुझसे कोसों दूर है, हम उससे कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत हमें सैक्रिफाइस करना सिखाती है, फेथफुल रहना सिखाती है, ओबीडियंस करना सिखाती है। दुनिया के लिए नहीं, खुदा के लिए। बट व्हाट डू वी टीच आवर किड्स? आप क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? डू वी गिव दैट वैल्यू? हम उनको पावर की, उनको वायलेंस की, उनको विनिंग की, उनको पनिशमेंट की हिदायतें देते हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी टीच देम। पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमिलिटी, विनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग अ हार्ट। हम लोगों के लिए वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, हम मसीहों के लिए भी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। हम ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये सीख सकें, क्योंकि वो ह्यूमिलिटी हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम हमारे से लिए उठता जा रहा है। Are we really doing what Jesus said to us? Are we really representing Christ in us? बहुत सारे लोग कह, किसी ने, एक विद्वान ने कहा कि बहुत सारे लोग आज मसीह नहीं है क्योंकि वो किसी मसीह को जानते हैं, जो अपने आप को मसीह कहता तो है, अपने आप को बिलीवर कहता तो है, मगर 0% मसीहत को कैरी करता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे मसीह हैं, वो इसलिए मसीह हैं क्योंकि वो किसी मसीह को जानते हैं, क्योंकि वो सचमुच में मसीहत की क्रॉस को, उस सलीब को अपने कांधे पर लेकर चल रहा है, इसलिए आज वो
मसीह है. And that's what God wants you to do, want you and me to do. खुदा का कलाम बड़ा इंस्पायरिंग है, बड़ा ब्यूटीफुल है, हम सब उसको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो इट. ऑन प्रिंसिपल हम उसके ऊपर चलना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसी प्रैक्टिकलिटी हमारी जिंदगी में आती है हम भूल जाते हैं. लव योर नेबर, प्रैक्टिकली, प्रिंसिपली वेरी गुड. वेलकम द स्ट्रेंजर, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है. हम सारे स्ट्रेंजर को अपने घर में इनवाइट करने की सोचते हैं. अपने पड़ोस से अपने सामान मोहब्बत रख, हम कोशिश करते हैं, मगर ऑन प्रिंसिपल हम कर पाते हैं. जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है, उसको अपनी जिंदगी में उतारने की बात आती है, तब हम सोचते हैं क्या हम ये काम कर सकते हैं. इट्स ब्यूटिफुल टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, बट इट इज वेरी हार्ड. बहुत मुश्किल है अपने गुनाह, अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रखना. वो पड़ोसी जो रोज आपके घर में कूड़ा डाल जाता है, राइट? वो पड़ोसी जिसके घर से पत्ते उड़ के आपके गार्डन में आ जाते हैं, वो पड़ोसी जो आपके ऊपर नजर रखता है, उस पड़ोसी से मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल है. खास तौर से पड़ोसी की तो बात छोड़िए, कलाम कहता है लव योर एनिमीज. वो जिसने आपके खिलाफ खड़े होकर झूठी गवाही दी थी, वो जिसने आपके खिलाफ दुनिया में जाकर अफवाहें फैलाई थी, जिसने आपके बेटे आपकी बेटी के लिए यह काम किया था, उस दुश्मन को माफ करना. इसको कभी माफ नहीं करूंगा. खुदा लिख के रख ले, इसको कभी माफ नहीं करूंगा. वो कह रहा है अनलेस यू बिकम अ स्लेव टू लव यू कैन नॉट बी माई डिसाइपल्स. व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी टीच, व्हाट डू वी लर्न. ये सारी चीजें प्रिंसिपल, ऑन प्रिंसिपल बड़े अच्छी लगती है. जब मगर हमारी जिंदगी में ऐसा आता है जो अनलवेबल होता है, जिसको हम प्यार नहीं कर सकते, जो हमारे आंकड़ों पे, हमारी मोहब्बत पे, जो हमने दुनिया से सीखी उससे उस पे फिट नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? जो हमारे लिए अनफॉरगिवेबल होता है, तब हम क्या करते हैं? वो हम कुड़ के कहते हैं ये हमारे जजमेंट के लायक है, ये कंडेमिनेशन के लायक है. यीशु मसीह ने क्या कहा? समारिया में जाके बताओ कि मैं आने वाला हूं. समारियों ने बोला भाई हम इसको कबूल नहीं कर सकते, ये तो बात उसकी करता है कि मोहब्बत ऐसी रखो कि तुम्हारे को सैक्रिफाइस करना पड़े. बी अ स्लेव टू लव. समारिटन्स ने उसको आने से मना कर दिया. तो चेले क्या बोलते हैं? अब चेलों के हाथ में पावर है, समझ रहे हैं आप? चेलों के हाथ में पावर है. तो चेले क्या कहते हैं? खुदा बाप बता आसमान से आग निकाल के इनको भस्म कर देते हैं, अभी खत्म कर देते हैं, राइट? खुदा कह रहा है यार कब समझोगे? कुछ शर्म करो. ही रिब्यूक देम. वो कहता है शर्म करो, अभी मैं तुम्हें बता के आया हूं यू नीड टू बी स्लेव टू लव. और अब तुम कह रहे हो क्योंकि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं वहां पर आऊं, क्योंकि हो सकता है मैं उनकी तरह दिखता नहीं, उनकी तरह बोलता नहीं, उनकी लैंग्वेज नहीं बोलता, उनकी तरह बाल नहीं बनाता, उनकी तरह कपड़े नहीं पहनता, उनकी तरह खाता पीता नहीं हूं, उनके जैसा कलर मेरा नहीं है, रिजेक्ट करने दो. तुम अपने आप की सुधि लो, मोहब्बत करो. जो पावर तुम्हें दी गई है डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं दी गई है, क्रिएट करने के लिए दी गई है. तुम क्रिएट क्या कर रहे हो? आसमान से आग. चाहता तो मैं भी कर देता, ये चाहता तो मैं खुद कर देता. मुझे तुम्हारी चेलों की क्यों जरूरत थी? अगर मुझे आसमान से आग ही बरसानी होती तो. आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू लव देन डिस्ट्रॉय. अच्छा मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं. सब लोग अपनी आंखें बंद करें. 3 सेकंड में 3 नाम सोचें जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं. क्लोज योर आइज. 3 सेकंड में 3 नाम सोचें जिससे आप मोहब्बत रखते हैं. थैंक यू. सोच लिए? मैं किसी से पूछूं डेविड भाई किसका नाम है? किसका नाम है? 3 फटाफट. बीवी बच्चे. और कोई? मेरा नाम नहीं लिया आपने. और कोई? विलियम अंकल किसका नाम सोचा?
गुड। कोई ऐसा है जिसने अपना नाम सोचा है? कोई? क्यों मोहब्बत नहीं करते अपने आप से आप? मैंने बोला किसी का भी नाम सोच सकते हो, अपना नाम क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपको मोहब्बत अपने आप से करने के लिए नहीं दी गई है, आपको मोहब्बत दूसरों से करने के लिए दी गई है। आपके दिल में जो प्यार, मोहब्बत खुदा ने दया को उर्दू में क्या कहते हैं? तरस, ख्वाहिशें, ड्रीम्स जो आपके अंदर पोर किया गया है, वो दूसरों के ऊपर पोर करने के लिए किया गया है, आपके खुद के पोर करने के लिए नहीं दिया गया। सेल्फ लव यू कांट फाइंड इन बाइबल। सेल्फ लव इट्स अ नॉनसेंस। सेल्फ लव, खुदा ने कहा तू मेरा मंदिर है, अपने आप की टेक केयर कर। यस, बी हेल्दी। जीसस क्राइस्ट नेवर सेड बी हैप्पी इन द गॉस्पेल, नेवर। He talks about joy. The joy of the Lord is my strength. वो कभी नहीं कहता तुम्हारे को खुश रहना जरूरी है। उसे पता है तुम खुश नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने एनिमी से मोहब्बत करनी है। वो एनिमी जो तेरे घर के अंदर मौजूद है, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरा बेटा, हो सकता तेरा बच्चा, उससे मोहब्बत रखनी जरूरी है। And it will be difficult, my friends. It will be very, very वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि नफरत करना आसान है, स्टोर करना, होल्ड करना, अपने घर में अपनी जेबें भरना, अपना बैंक बैलेंस भरना आसान है, किसी के ऊपर थप्पड़ मारना आसान है, किसी को जमीन से उठाना मुश्किल है। इसीलिए खुदा का कलाम मुश्किल है, इसीलिए खुदा का रास्ता मुश्किल है। क्यों सोचते हो 6.5 बिलियन में हम लोग इतने से बचे हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग सेल्फ लव में पड़े हुए हैं। औरत से अपने बच्चे, बीवी, बच्चों से प्यार कर रहे हैं। वो कह रहा है लव योर एनिमी। आप में से कितने बैठे थे, कितनों ने अपने एनिमी का नाम लिया था जब मैंने कहा किससे मोहब्बत रखते हो? डायरेक्ट हुकुम-ए-दूली है डायरेक्ट हुकुम-ए-दूली। सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया, अपने बच्चों का नाम लिया, मगर आप में से कितने हैं जिन्होंने कहा आई लव माई एनिमी? वो सुमित हैरिसन जिसने मेरे साथ गलत किया था 10 साल पहले, जिससे मैं नफरत करता था, आज खुदा के कलाम के पढ़े जाने के वसीले मैं उससे मोहब्बत रखता हूं। लेट हिम बी इन दोस 3 नेम। डू यू डू दैट? डायरेक्ट हुकुम-ए-दूली है। कलाम कहता है बी स्लेव, दास बन जा मोहब्बत के लिए, दास बन जा। Which verse is that? चिका, go ahead, आगे वाली। ठीक है, खुदा क्या कह रहा है आपसे? जो तेरे लिए मुश्किल है मेरे लिए बड़ा आसान है। जो तेरे लिए मुश्किल है मेरे लिए बड़ा आसान है। मैंने पिछली बार आपको एक कहानी सुनाई थी, आई डोंट नो मैंने सुनाई थी नहीं सुनाई थी। हमारे लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल है, मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल है, मगर आई टेल यू समथिंग। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जो था वो एक कैबिन में रहता था, खुदा से रोज मांगता है दुआ, खुदा मैं कुछ तेरे लिए करना चाहता हूं, मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे बता। खुदा ने एक दिन उसको दर्शन दिया। खुदा उसके पास आया, बोला सुन, तेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को जाके तुझे धक्का लगाना है, पूरे दिन ये करना है, जाकर। बड़ा ईमानदार था जी। सुबह नहाया धोया, 5 बजे उठा, खाना वाना खाया और धक्का लगाना शुरू कर दिया। एक दिन धक्का लगाया, 2 दिन धक्का लगाया, 4 दिन धक्का लगाया। जब अपने घर में शाम को वापस आता, थका हारा बेचारा, पसीने में थका हुआ, हाथों में दर्द हो रहा, पैरों में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, मगर उसने खुदा ने कहा था पुश करना ही है, पुश करता रहा, पुश करता रहा, पुश करता रहा। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया। अब उसके दिमाग में आने लगा, यार 1 साल हो गया धक्का लगाते लगाते, यार ये तो पत्थर 1 इंच नहीं हिलता, इतना बड़ा पत्थर कहां से ला दूंगा मैं, 1 इंच नहीं हिल रहा जी। अब जैसे ही उसके दिमाग में ये आया, बाइबल कहती है जैसे ही तेरे दिमाग में शक आया, तूने शैतान को एक फुटस्टूल दे दिया, एक करड़ दे दी, शैतान उसके अंदर घुस गया। शैतान क्या कहता है, देख ले, अबे तू लूजर है, अबे तेरे बस की कुछ नहीं है, 1 साल हो गया तुझे, खुदा ने इतना सा काम दिया था, पत्थर को मूव कर दे, तेरे बस की वो भी ना हुआ, शर्म कर। अब वो बेचारा डिसहार्टन हो गया, बोला यार। अब अगले दिन वो क्या किया, नहा धो के गया, 5 बजे की बजाय 8 बजे गया, उसके अगले दिन 12 बजे गया, उसके अगले दिन 4 बजे गया, और बस टेक लगा खड़ा हो गया उसके साथ, पत्थर के साथ। खुदा उसके सामने आया, बोला हाँ भाई क्या हो रहा है, 1 साल तक तो बड़ा फेथफुल था तू, अब क्या हो गया? बोला खुदा बाप ये पत्थर तो हिल ही नहीं रहा। यीशु मसीह ने बोला तुझे पत्थर लाने के लिए कहा किसने था? मैंने तुझे पत्थर लाने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा था धक्का लगा, मैंने कहा था पत्थर हिला नहीं। दिस इज हाउ
we change God's word. This is how we change. अब तू सोच रहा है कि तू लूजर है, देख अपने बाजुओं को कितनी ताकतवर है, देख अपनी जांघों को कितनी ताकत आ चुकी, देख तेरी पीठ कितनी मजबूत हो गई, देख तेरा डिटर्मिनेशन, तेरी फेथफुलनेस, तेरी ओबीडियंस, तेरी फेथफुलनेस टुवर्ड्स क्राइस्ट जीसस, एंड आई विल रिवॉर्ड यू, एंड द रिवॉर्ड इज, मैंने तुझे कभी पत्थर लाने के लिए कहा था, मैंने सिर्फ तुझे फेथफुल रहने के लिए कहा था, पत्थर मैं लाऊंगा. I will move the mountain for you. You just need to be obedient. हम मोहब्बत कैसे करें खुदा, अपने दुश्मन को कैसे माफ कर दे? वो कहता बस तू कर, तेरे दुश्मन को घुटनों पे लेके मैं आऊंगा तेरे लिए. Do you love me? पतरस, do you love me? That is more important than anything else. वो कहता है जो तुमसे मांगता है दे दो, मैं तेरे खजाने को डबल भर दूंगा. यू नीड टू हैव ईमान होना जरूरी है ना, ओबीडियंस होनी जरूरी है. मगर हम अपने दिमाग से चलते हैं, हम दुनियावी तरीके से मोहब्बत करना जानते हैं और उसी मोहब्बत पे स्टिक रहना जानते हैं जो हमारे माँ बाप ने हमें गलत सिखाई थी, हो सकता है जो हमारे टीचरों ने हमें गलत सिखाई थी, जो हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे सेलिब्रिटीज ने, जिनको हम इन्फ्लुएंसर मांगते हैं, उन्होंने गलत सिखाई थी. मोहब्बत अंधी होती है, अंधी नहीं होती जी, चॉइस होती है मोहब्बत. आप चूज करते हैं उस औरत का हाथ पकड़ के, उस आदमी का हाथ पकड़ के चर्च के अंदर, और कहते हैं आई विल बी विद यू फॉरएवर. आप चॉइस लेते हैं, चॉइस. अंधी नहीं होती मोहब्बत, ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए मोहब्बत अंधी होती है, उसके बाद वो अंधापन सब साफ हो जाता है. औरत को भी साफ साफ दिखता है, आदमी को भी साफ दिखता है कि हाउ डिफिकल्ट इज गोइंग टू बी विद दिस मैन, हाउ डिफिकल्ट इज गोइंग टू बी with living with this woman. And then you make a choice because you have a covenant. Abide by God that you will live with that person for forever. And that's what the Bible says. In this world when we have so much hate, जो हमारे सामने खड़ी है, बहुत सारे haters हैं, बहुत सारे abusers हैं, बहुत सारे curses हैं, श्राप देने वाले हैं हमारे. उस जमाने में क्या ये गॉस्पल, क्या ये खुदा का कलाम कहीं आपकी जिंदगी में खड़ा होता है, कहीं पर खड़ा होता है? आई डोंट थिंक सो. कभी आपने कभी रिलेशनशिप को एंड किया है? ये भी किया होगा, आई डोंट नो. करने वाले होंगे, आई डोंट नो. क्यों? क्योंकि दे बिट्रेड यू. क्यों? उन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि आप जैसा चाहते थे वैसा आपकी जिंदगी में या आपके सामने वाले ने नहीं किया. We've done that. We've all done that. We've all been there. और आज हम चाहते हैं मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसको कभी माफी नहीं दूंगा, कभी भी. हम डायरेक्ट खुदा के कलाम का ऑपोजिशन कर रहे हैं. जब खुदा कहता है तुम्हें माफ करना लाजमी है, माफ करना लाजमी है. आप उसके बाद क्या एक्शन लेते हैं, दैट इज योर चॉइस. माफ करना जरूरी है. When do you condemn somebody? कब ऐसा होता है कि आप जजमेंट पास करते हैं और कहते हैं यू आर रॉन्ग. जिसके लिए सामने वाले के लिए 6 है, मेरे लिए वही चीज़ 9 है. हम अपने पर्सपेक्टिव सोच के देखते हैं, अपने दायरों से सोच कर देखते हैं. एंड सम टाइम वॉट वी वॉन्ट, हम इवन होना चाहते हैं, हर एक से इवन होना चाहते हैं. नहीं, कलाम भी यही कहता है. वो कहता है तुझे अपने दुश्मन से इवन होने की जरूरत नहीं है. जब तू उससे मोहब्बत करेगा, उसके सर पे अंगारे रखेगा, वो जलेगा अंदर ही अंदर कि यार ये कैसा बंदा है. तभी हमें लोग वियर्डो कहते हैं, वियर्डो, क्रिश्चियंस को वियर्डो कहते हैं. हम बड़ी उम्दा कौम, अजीब सी कौम है कि कोई हमारे एक हाथ पे थप्पड़ मारता है, मुंह पे थूक के जाता है, हम उसको बरकत देते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो हम उसके सर पर अंगारे रखते हैं. मगर हम में से बहुत तेरे हैं जो अपना जजमेंट पास करके हम उसकी डर्ट को दुनिया में फैलाते हैं. कलाम क्या कहता है? इसीलिए डू नॉट जज. इसलिए नहीं कहता कि हमें जज करना जरूरी नहीं है, जज करना जरूरी है. वो कहता है डू नॉट जज. जज करने से कुछ नहीं होगा. मेरे भाइयों बहनों, दिस वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स. लाइफ बड़ी फ्रेजाइल है, बिखर जाती है एक मिनट के अंदर. रिश्ते यूं बिखर जाते हैं, जिंदगी यूं खत्म हो जाती है. कभी जिंदगी के मायने सीखने हैं तो 3 जगह जाएं, हॉस्पिटल,
जाके देखें मरीज जो उसके ऊपर बिस्तरों में पड़े हैं, आपको पता लगेगा आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। गो टू प्रिजन में आपको जाके पता लगेगा आपका घर कितना बड़ा सेफ जोन है। घर आके आपको पता लगेगा घर कितना बड़ा सेफ जोन है, जिसमें आप तकिया रख के सुकून की रात सो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई इंट्रूडर आकर आपका गला नहीं रेत जाएगा। और तीसरी जगह सेमेट्री, कब्रिस्तान में जाकर देखें, वो सब ड्रीम लेके, गुनाह लेके, सुकून लेके, बरकत लेके सब वहां पड़े हैं। और हम जब सुबह उठते हैं, हम अपने दिल में फिर नफरत लेके उठते हैं। राइट? 3 जगह जाकर देखें, आपको जिंदगी के मायने पता लगेंगे। जिंदगी मुश्किल है और खुदा हमारे को उन मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए ये नहीं बताता कि व्हाट टू सी, आपको क्या देखना है। खुदा ये नहीं कहता, वो कहता है मैं तुझे ये सिखाना चाहता हूं, एक बड़ा पर्सपेक्टिव समझ के देख। आई वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू सी, नॉट व्हाट यू सी डायरेक्ट। एक आदमी के अंदर, एक औरत के अंदर उसकी क्या बुराइयां हैं, ये मत देख। ये देख ये बुराई क्यों कर रहा है, ये देख के तेरा दुश्मन बन क्यों गया। क्या तेरी खुद की तो कोई बुराई नहीं थी जिसकी वजह से तूने इसको अपना दुश्मन बना लिया? क्या तूने किस दिन उसकी भैंस चुराई थी इसलिए वो तेरा दुश्मन बन गया, और आज तू खड़े होकर कह रहा है तू मेरा दुश्मन है, मैं तुझ पर लानत भेजता हूं? पर्सपेक्टिव को समझ कर देखिए। दुनिया में तबाही, दुनिया में परेशानियां, दुनिया में इतना कलेश है, और हम खुदा की ओट में हैं। हमें खुश रहकर खुदा का शुक्र करना चाहिए और मोहब्बत करनी सीखनी चाहिए। 1 कुरिन्थियों 13 अपने दरवाजों पर, अपने वॉल पर लिख कर लगा लें। 1 कुरिन्थियों 13। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हम सब उसको फॉलो करते हैं या कर सकते हैं। इट्स डिफिकल्ट, समटाइम वी फॉल, समटाइम वी राइज अप। कई बार हम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे क्रिश्चियन बन जाते हैं, लोग हमारा फायदा उठाते हैं। कई बार हम बड़े गिरे हुए रह जाते हैं और उस जगह तक नहीं पहुंच पाते। God is not telling us what to see, He is teaching us how to see, and that is very important. वो हमारे को आंसर नहीं देता, खुदा हमारे को कभी भी उत्तर नहीं देता। उत्तर को उर्दू में क्या कहते हैं? जवाब नहीं देता। वो हमारे को सही क्वेश्चंस करने की आदत डालना चाहता है। सही आंसर, सही क्वेश्चंस करके देखिए, खुदा ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? खुदा मेरी टांग टूट गई, क्यों टूटी है? खुदा मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्यों ऐसा हो रहा है? तू जो तारे जुहान का खुदा है, मेरे पास 10 पाउंड नहीं है बैंक अकाउंट में, क्यों नहीं है? तू इससे मुझे क्या सिखाना चाहता है? अपने आप बाइबल अपनी बैंकिंग ऐप को खोल कर ये ना देखिए कि इसमें 10 पाउंड क्यों पड़े। सिर्फ आप इसको देखिए कि खुदा हमारे को इससे सिखाना क्या चाहता है। हाउ कैन गॉड ब्रिंग यू क्लोजर? खुदा अपनी नजदीकी में आपको कैसे लेकर आता है? इस 10 पाउंड की वजह से। ये मोहब्बत हमें सीखनी और करनी जरूरी है। जो नहीं कर पा रहे हैं तो कमी खुदा के कलाम में नहीं, कमी हम में है, और हमें इसको सीखना जरूरी है। और अगर इसकी वजह से आपको ठोकर लग रही है या आपकी वजह से किसी और को ठोकर लग रही है, तो कई बार हम लानती बन जाते हैं। इफ यू डू नॉट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से ऐसे ही मोहब्बत रखते हैं। वायदा सुनिए, अगर तुम उनका भला करो, 35वीं आयत 35, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अब्र बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे और बेटियां ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बर्दों पर भी मेहरबान है। आप में से कितने हैं जो खुदा के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं? मोहब्बत करें। कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत करें। जो आपसे कुछ मांगता है उसको दे, मोहब्बत करें। दुश्मन आपके पास आता है, मोहब्बत करें। देखिए हमारे में बड़ी परेशानी है। कई बार मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी था, गाड़ी चला रहा था, बीच रास्ते में अंधेरे में बारिश में उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब उसने टायर वो खोला, अपना बूट खोला, तो उसमें जो रेंच होता है, रेंच कहते हैं ना उसको,
नट खोलने के लिए, वो नहीं था, बाकी सब कुछ था, नहीं था। अब उसने बोला यार क्या करूं क्या करूं। उसने दूर एक घर देखा, बोला चल वहां चलता हूं, वहां तो होगा ही होगा, ढूंढ के लाता हूं। पैदल चलने लगा। अब रात के 12 बज रहे थे, पैदल चलने लगा, बारिश हो रही थी, भीग रहा था, चिढ़ रहा था, कहता क्यों गाड़ी खराब हो गई, क्यों गाड़ी खराब हो गई, पंचर हो गया, चलता जा रहा। फिर उसने सोचा वो आदमी जब मैं उसके पास जाऊंगा, दरवाजा खटखटाऊंगा, तो वो जैसे ही आदमी दरवाजा खोलेगा कहेगा अबे कितना बेवकूफ आदमी है तू, रात को 12 बजे मैं तो सो रहा था, अपने बच्चों के पास था, खाना खा चुका था, तुझे मुझसे ये रेंच मारने की क्या जरूरत थी, मेरे पास कोई रेंच नहीं है, मैं तुझे रेंच ही दूंगा, भाड़ में जा, भाग जा यहां से। अब ये उस आदमी ने दिमाग में सोच लिया। अब वो जैसे ही उसके दरवाजे पर गया, दरवाजा खटखटाया, वो आदमी आया, बोला हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, आपने मेरा दरवाजा खटखटाया। बोला सुन सुन, बाहर में जा, मुझे तेरा रेंच चाहिए, चल, और छोड़ के भाग गया। समझ रहे मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं? ये हमारा दिमाग है जो हमारे साथ खेल रहा है। उसका दिमाग ने ऑलरेडी कह दिया कि ये आदमी मेरा दुश्मन है। हम बहुत सारी बार ऐसे करते हैं कि अपने दिमाग को परमिशन देते हैं कि वो डीमंस, वो शैतान हमारे दिमाग में घुस के नेगेटिविटी को पैदा करे, और जो कुछ भी हमारे अराउंड पॉजिटिव हो रहा है हम उस सब को भूलकर सिर्फ उस नेगेटिव को देखें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा हमारे को यह नहीं बताना चाहता कि हम क्या देखें, वो कैसे देखें। ये जानना, ये देखना हमारी जिंदगी में जरूरी हो जाता है। What is our behavior towards it? That is important, isn't it? हम रोज उस टेंशन में जीते हैं। हमारा दिमाग कहता है वर्ल्ड की तरह चल, हमारा दिल कहता है खुदा के पैमाने पर चल, एंड वी स्ट्रगल एवरी डे। क्या उस स्ट्रगल में आपके बच्चे, आपकी स्पाउस, आपका नेबर, आपका वर्क, आपका स्कूल खुदा से दूर जा रहा है? आर यू द स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर इट? डोंट डू इट। ये कलाम कह रहा है, ये कलाम कह रहा है कि उस तरीके से उस टेंशन को सुधारें। दूसरा बिहेवियर, आपका बिहेवियर किस तरीके का है? आपका फेथ, तो आप कहते हैं मैं ईमान लाता हूं खुदा पे, मैं ईमान लाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने नेबर से मोहब्बत करूं, स्ट्रेंजर को वेलकम करूं और मोहब्बत करूं अपने दुश्मन से। बस जैसे ही वो बिहेवियर में आता है हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। हम कहते हैं खुदा मैं उस स्ट्रेंजर को वेलकम तो करूंगा, मगर एक मिनट मुझे दरवाजा खोलकर देखने तो दे कि ये मेरी तरह दिखता है, ये मेरी तरह बोलता है, क्या ये मेरी तरह महसूस करता है, तभी मैं इसको घर में आने दूंगा। हाँ खुदा मैं इसको माफ तो करूंगा, मगर क्या इसने मुझसे माफी मांगी है? क्या अपने कर्मों से बदलने की कोशिश करी है? क्या ये फ्यूचर में मेरे साथ दोबारा वो काम नहीं करेगा जो उसने अभी किया है? हाँ अगर तब तू कहेगा तभी मैं इसको माफ करूंगा। हाँ खुदा मैं इससे मोहब्बत तो करूंगा, मगर ये तो मेरी तरह दिखता ही नहीं, ये मेरी तरह बोलता नहीं, ये मेरी तरह चलता नहीं, जो आंकड़े जो टाइम टेबल मैंने इसके लिए सेट किया है ये वैसे तो काम करता ही नहीं, मैं इससे मोहब्बत कैसे करूं? मैं हाउ कैन बी अ सर्वेंट टू दिस पर्सन बिकॉज ये मेरी तरह बोलता नहीं, मेरी तरह चलता नहीं। मगर कलाम कहता है मोहब्बत करना जरूरी है, माफी देना जरूरी है और स्ट्रेंजर को वेलकम करना जरूरी है, और इसके ऊपर ये सब अनकंडीशनल है। आप मोहब्बत के ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते, आप फॉरगिवनेस पे कंडीशन नहीं लगा सकते, आप वेलकमिंग पे कंडीशन नहीं लगा सकते। ये सब अनकंडीशनल चीजें खुदा ने आपके साथ करी है। मैंने क्या बोला? हम सब लहू के खरीदे हुए हैं। हम सब एक टाइम ऐसे थे जब हमसे खुदा मोहब्बत नहीं कर सकता था, जब वो हमें माफ नहीं कर सकता था, जब वो हमें अपने लहू से खरीद कर उस खेमे में नहीं डाल सकता था। उसने किया ना, तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपने प्राइड में, अपने घमंड में, अपने गर्व में इतने ज्यादा टूटे हुए हैं, इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, या शैतान के उस फर्जंद ने हमारे सरों पे इतना जोर आजमा लिया है कि हम उस सब से दूर जाने की कोशिश करते हैं और उस मोहब्बत को जो खुदा हमसे करना चाहता है उसको भुलाना चाहते हैं। कलाम कहता है जो तूने हल पर हाथ रख दिया और उसके बाद तू पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, अगर आपने मान लिया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मोहब्बत
ना रखे। वो सारी मोहब्बत उसने आपके अंदर पोर करी है ताकि आप उस मोहब्बत को आगे शेयर कर सके। Do we need to stop that behavior which is causing other people trouble? क्या हमें उस बिहेवियर को बदलने की जरूरत है तो क्यों? Every day, my friends, we make a choice. Either we make a choice to be big or either we make a choice to be small. क्या हमारे सामने जो आता है, क्या हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी डायरी में आप क्या लिखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू मेक अ राइट चॉइस। आपकी चॉइस जो आप ले रहे हैं, क्या वो किसी को ऊंचा उठाती है? क्या खुदा के नाम को ऊंचा उठाती है या आपको खुद को ऊंचा उठाती है? सेल्फ लव, रिमेंबर आई टोल्ड यू देयर इज नथिंग लाइक सेल्फ लव इन बाइबल, इन क्रिश्चियनिटी। मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत लाचारी है, बहुत लोग मोहताज हैं, बहुत मरी है, भूखा है, नंगाई है, मौत है, और हम सब वो फेस करते हैं। मगर इस गॉस्पेल का जो हमने पढ़ा आपके सामने, उसका एक मूल है, उसका एक निचोड़ है। वो ये है कि अगर आप किसी के दर्द को कम नहीं कर सकते तो किसी के दर्द को बढ़ाएं नहीं, है ना? मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई है, बैठे यहाँ पर, कहते हैं बेटा अगर तू कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए बुरा तो मत बोलो, राइट? अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, कि दुनिया में बहुत दुख है, हर कोई अपनी जिंदगी से जद्दोजहद में लगा है। वो लोग जो बाहर सड़कों पे लड़ रहे हैं, दे हैव अ स्टोरी बिहाइंड देम। अ पर्सन जो सैड होकर बैठा है, जो बंदा अपने आंसू बहा रहा है या खुशी दिखा रहा है, you know, every day, every minute, one man commits suicide. And this is, I'm talking about men, I'm not talking about women, because there is more men who commit suicide. There are more men in prisons. They go through a lot. We all go through a lot. क्या आप उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं या उनकी मुश्किलों को घटा रहे हैं? That's the gospel would like to tell you at a bigger perspective. ये खुदा आपसे बात करना चाहता है। इसीलिए वो कहता है डू नॉट जज। यहां इसलिए कह रहा है डू नॉट जज। अफजाई ना करो, तुम्हारी भी अफजाई ना की जाएगी। अगर आप जज होना चाहते हैं तो जज कीजिए, नहीं होना चाहते तो मत कीजिए, क्योंकि खुदा आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको जज नहीं करता। वो अपने बेटे के खून के वसीले मेरे को और आपको जज करता है। अगेन मैं फिर आपको बोलना चाहूँगा कि अपने बिहेवियर को, अपनी टेंशन को, अपने चॉइसेस को, अपने पेन को कंट्रोल करना सीखिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम किसी और के दर्द में और दर्द को ऐड करेंगे और फिर हम खुदा के स्लेव नहीं बन सकते, हम शैतान के स्लेव ही रहेंगे इन अ शेप ऑफ कि हम क्रिश्चियन हैं। हम सोचेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं एंड विल ऑलवेज गिव एन एक्सक्यूज टू गॉड बट इफ। आखिरी आयत में अगर हम पढ़ें लूका 9 के अंदर, तो क्या कहते हैं? खुदा ने कहा मेरे पीछे हो ले। उसने बोला मुझे मेरे मुर्दों को गाड़ने दे। दूसरे से बोला, उसने मुझे बोला जाके मुझे अपने घर वालों से मिलने दे। उन्होंने बोला स्टॉप गिविंग दिस एक्सक्यूज। खुदा मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि उसने साथ मेरे साथ ये किया है। खुदा मैं इसको माफ नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया है। खुदा मैं इसको अपने घर में इन्वाइट नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरे साथ ये किया है। स्टॉप डूइंग दैट। Stop adding more pain in someone's life. और actually do we even want to stop? क्या हम रुकना चाहते भी हैं? क्या हम इस बात को रियलाइज भी करते हैं कि हम कितना दुख, कितनी तकलीफ दूसरों के नाम में, दूसरों के कामों में ऐड कर रहे हैं? Chances are, my friends, there is a family member, आपका कॉलीग, आपका भाई, आपकी बहन, आपका नेबर, आपके बच्चे, आपका दोस्त या आपका दुश्मन, वो आपकी मर्सी के लिए, आपकी फॉरगिवनेस के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए खड़ा है आपके सामने। और हम पता क्या लेके खड़े हैं? कैंची।
कैंची लेके खड़े हैं उस मोहब्बत को काटने के लिए। कितने हम में से ऐसे जो उस मोहब्बत को जोड़ना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था और मैं बहुत बार ये बोलता हूँ, खुदा जो कुछ भी बनाता है शैतान उसको तोड़ता है। हमेशा हमेशा खुदा ने आदमी को बनाया, औरत को बनाया, उनको एक बनाया। शैतान खड़ा है उनको तोड़ने के लिए। फर्स्ट वो इंडिविजुअल के ऊपर आता है, उसके बाद बच्चों पे आता है, और यही उसकी टेक्निक है। अगर आप उस टेक्निक को नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते, तो आई थिंक वी नीड टू गो मोर डीपर। There are some relationships which should be broken, I understand that. But mostly it's all attacks, demonic attacks. Try to control it. Try to get your mind right in the word of God. अपने दिमाग को खुदा की दुरुस्ती में, खुदा के कलाम में लगाएं, और इंस्टेड ऑफ आप किसी के लिए किसी के पंखों को काटे, उनको उड़ने की ताकत दें। That is the word of God for you and for me. Don't give but if. खुदा मुझे पहले ये करने दे। वो कहता पहले और आखिरी की छोड़, तू मेरे पीछे बोले, और जब तू मेरे पीछे होगा सारी चीजें तेरे लिए एकजुट होने लगेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम टू खुदूस प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जलाल के लिए, तेरी रहमत, तेरे कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए, तेरी आवाज़ के लिए, जो तेरे कलाम से हमसे मुँह दर मुँह होती है, और हमें उस सच्चाई को, उस रूह को, उस मोहब्बत को जो तूने सलीब पर से हमसे करी, हमें दिखाती है। और देखो खुदावन कि तेरे इस मोहब्बत के कलाम को हम अपने दिमाग में नहीं मगर अपने दिल में कंसीव करें, उसको बढ़ने दें, और उसको एक ऐसा बड़ा पेड़ बनाएं जहाँ पर रूह के फल लगते हैं, जहाँ पर रूह और सच्चाई से तेरी इबादत की जाती है, और हर कोई उस इबादत में शरीक होने के लायक होता है। चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उसको माफ़ करके तेरी नज़दीकी में, तेरे सुपुर्दगी में, तेरे हुजूरी में लेकर आना चाहते हैं। तो होने दे खुदावन कि तेरा इल्म हमेशा हमारे साथ बना रहे और तेरी मोहब्बत में हम जुड़े रहें, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं खुदावन तेरी बरकतों से भरे जाएं, इनकी तकलीफ़ें, इनकी आरजुएं खुदावन तेरे कलाम से, तेरे आसमानी खजानों से हिला कर और दबा कर भरी जाएं, ताकि ये तेरे बेटे और तेरी बेटियां कहला सकें। हम सबको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।